साथ, क्या ख्याल है? ठीक है, सो नायला आपके पास है कोई जी जी सिनेरियो या मैम, मैं आप आपको बता दूं? जैसा आप कहें। जी। मैं मेरा ख्याल आपको देती हूँ, बिकॉज आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस है फाइब्रोइड से रिलेटेड। लास्ट टाइम भी HMB का हम कर रहे थे, बट सारा आपका फोकस ज्यादा फाइब्रोइड पे जा रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अलग क्लास हम कर लें फाइब्रोइड से ही रिलेटेड, कि किस में आपने कब क्या करना है और किस एज ग्रुप में। तो हम एक सिनेरियो तो करते हैं, और एंड पे हम बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज भी इसके कवर कर लेंगे। So, जी। patient is 35 years of age, and she's para 3 with previous three cesarean sections, and she's has presented with heavy menstrual bleeding for last 2 years, and for which she had blood transfusions also. And on ultrasound, there are multiple fibroids. Okay. Assalamu alaikum. I am Dr. Naila, and I have Madam read the scenario and ready to start the discussion. After greetings and mutual introduction with my patient, I will take the demographic details that is missing in the scenario, that last menstrual period and last born, and previous menstrual cycle of my patient, since how long she has irregularity or heavy menstrual bleeding, duration, onset, and then association with other symptoms like lower abdominal pain and feeling of heaviness and mass in the lower abdomen, frequency of urinary and bowel frequency, and how much she used pads per day and a whole day and night time, and she can how much how much heavy menstrual bleeding may affect on her quality of life and in daily work basis. And after that, I will take the history of any medication she has received up till now in the form of the medical therapy or the hormonal therapy, as she has received any surgical past surgical history, including past obstetrical. So last previous cesarean section, I will inquire about the recovery, and I will inquire about any history of APH, PPH. And also I will inquire about the history of easy fatigability and cramps in legs. And I will also inquire about the heat and cold intolerance, and then history of weight gain or weight loss, and then drug allergy history, and post medical history of comorbidities like diabetes, hypertension, thyroid, asthma, and cardiac diseases, and history of family history of CA endometrium, CA ovary, and CA breast, and then socioeconomic. हेलो हेलो जी, सॉरी नायला, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। आमना, आप इसको कंटिन्यू कर लो। आई थिंक नायला डिस्कनेक्ट हो गई है। जी आमना, जी मैम। अगर इसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो इसको इम्प्रूव कर लें, या फिर आप यस वो, सॉरी नायला का कुछ ना म्यूट अनम्यूट हो रहा है बार बार। नायला, इफ यू आर यस। देयर तो या तो चैट पे लिखो, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी जी, मेरा हो म्यूट गया? हो गया था। चलो ओके, सो सॉरी। आमना लेट हर जी कंटिन्यू जी, मैं जी। यस। सॉरी। स्टार्ट। जी नायला, कंटिन्यू करें।
जी मैम, I will inquire about the focus history regarding her the menstrual cycle, previous cycle and current cycle. Since how long she has a heavy menstrual bleeding, onset, duration, and how many pads she changed per day, any night time, and with floody blood or heavy clots, amount of the clots she can has mired or not, and how much her heavy menstrual bleeding impact on her quality of life, association with the pain and other symptoms like heaviness in lower abdomen, urinary symptoms, urinary frequency, and urgency, and then bowel symptoms. And then I will inquire about her heat and cold intolerance and heavy easy fatigability and cramps in legs and any history of nausea and vomiting. And then also I will take the history is she has taken any treatment in the form of the medical therapy or hormonal therapy up till now, and then what treatment she has received. And then I will inquire about further history of comorbidities like diabetes, hypertension, and history of drug allergy, and past obstetrical history, history of previous cesarean section, including her recovery. And I will inquire about history of APH, PPH, any history of blood transfusion, and also history of gynecologically. I will take the history of contraception, and then a history of sexual history, including the history of intermenstrual bleeding, dyspareunia, and any pelvic pain, and pap smear history, and socioeconomical history, and history of weight gain and weight loss also, क्विकली and history of एग्जामिनेशन कर लें, any फिर हम CA in इसको her और इम्प्रूव family कर लेंगे. like CA and or endometrium, CA ovary, and CA breast. ठीक है, एग्जामिनेशन बोल दें, फिर हम पूरा एक दफा इसको Yes, और ma'am. रिवाइज कर लेंगे. General physical examination. I will proceed for the general physical examination, including height and weight to calculate her BMI, and I will check the uh, her hands, pillar in hands, cholinekia, and her blood pressure, pulse, and then I will check her eyes for paleness, and then thyroid palpation, thyroid examination, then chest examination for aided sound, and abdominal examination. For inspection, I will look for a scar, mark, umbilicus, and then any other is palpation, superficial palpation, including superficial tenderness and deep palpation for mass and visceromegaly. So sizes of the mass is if it is palpable, and then tenderness and per speculum examination I will done for assessment of any vaginal discharge, any bleeding, and then I will do the bimanual examination to assess the uterine size, consistency, mobility, bimanual examination, uterine size, position, mobility, and tenderness, adnexal fullness in the fornix. सो गुड. ओवरऑल यू आर गुड नाइला. अच्छी बात यह है कि आपकी बड़ी क्लैरिटी है स्पीच में. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज्यादा गेम टाइम की है. आपके एक्सटेंडेड टॉक्स का जो पैटर्न है उसमें इस तरह का स्टेशन आपका दो स्टेशन पे मुश्तमिल होगा एक्चुअली. जी फर्स्ट जी स्टेशन मैम. में आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन डिस्कस होगा प्रोबेबली, और अगले स्टेशन में आपका डिस्कस होगा, क्या उसे कहते हैं, अगले स्टेशन में आपका डिस्कस होगा इसकी इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट. सो यस. और इस वजह से अब आपने, लेकिन जो पहला स्टेशन है वो भी तो 10 मिनट्स का ही है. आपने अपने वर्ड सेलेक्ट करने हैं, शॉर्ट वर्ड्स हो लेकिन ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो. और ठीक है. दिस हिस्ट्री आपकी एक्चुअली यू न्यू ऑल द पॉइंट्स, बट आपका पैटर्न बहुत हैपेजर्ड था. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ब्लीडिंग, देन यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लीडिंग. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल और एचएमबी एक्सप्लेन करके फिर आपने होट की कोल्ड और हीट इंटॉलरेंस बता दी, मेडिसिन बात बता दी, प्रेगनेंसी रूल आउट कर दी, और फिर एकदम से आप दोबारा आ गए इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकॉन्ट्रल ब्लीडिंग में. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लीडिंग यू हैव टू कवर द होल ऑफ इट. ठीक है. तो आपका, आई एम टेलिंग यू, इस तरह की हिस्ट्री में अगर आपका 60% पासिंग है तो मेरा ख्याल है कि 55 तक आएगा अगर आप आगे अच्छा भी परफॉर्म करोगे तो.
because examiner knows that you know the things but you don't know how to organize them. एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, थ्योरी आप पास करके आए हो और एग्जामिनर और सबको पता है कि शायद इस वक्त जितना थ्योरी से आप लोग जैसे कहते हैं ना, उबल रही होती है थ्योरी आपके अंदर से, शायद एग्जामिनर और किसी और का वो लेवल भी ना हो उस थ्योरी में जितना इस वक्त आप लोग अपडेटेड हो. बट it's not only exam of knowledge, it's about your attitude and skill also, right? So उस इसमें ये स्किल ही तो है कि आपने उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है ऑर्गेनाइज करके. देखो अब ये पेशेंट है, शी इज 35, शी हैज गॉट मल्टीपल फाइब्रॉइड्स. सबसे पहले प्रेगनेंसी की बात आपने बिल्कुल एंड पे जाके की. शी इज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. चलो आपने HMB कह दिया 2 years से, बट अभी भी तो है ना, जस्ट रूल आउट प्रेगनेंसी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. उसके बाद आप बोलना शुरू करोगे कि HMB का है. यू शुड यू आप जो है ना, बिकॉज अब पूरे 10 मिनट का स्टेशन इसके ऊपर है. आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए. आपने जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जब मैंने कहा ओके लेट्स डू द एग्जामिनेशन, देन यू रिपीटेड द होल थिंग. I would like to do examination, especially in terms of height and weight. Instead, you should have started that I will do general physical examination and more specifically for the BMI and further. ठीक है. So अपने words short और ज्यादा explanatory, focused but explanatory वो होने चाहिए. वो बहुत आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और इस तरह करके आप उस टाइम पीरियड में, बिकॉज इस वक्त वाकई मुझे लग रहा था कि आप नॉलेज बहुत है बट आप उसे बता नहीं सक रहे हो. देन when you were talking about HMB, you started it with HMB. आपने पहले previous cycle quickly, previous cycle से क्या मुराद है? नंबर ऑफ पैड्स पर डे, नो इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग एंड डिस्मेनोरिया. या आप बेहतर है पेशेंट के वर्ड्स में बोलो कि नो इरेगुलर vaginal bleeding during the whole cycle, no bleeding after intercourse and no painful menstruation, right? और उसके बाद आप, but now for the last 2 years the number of pads has increased, which is maybe 5 to 8 or 8 to 10 per day. And however there is still no intermenstrual or postpartum bleeding present. और फिर नंबर ऑफ पैड्स में होममेड पैड्स हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सारा आपने बताया. उसके बाद बिकॉज देर आर फाइब्रॉइड्स ऑन अल्ट्रासाउंड, यू कैन टॉक अबाउट प्रेशर सिम्टम्स देयर एंड देन. But don't just say that urinary symptoms and bowel symptoms. Tell what urinary symptoms you are expecting. It's increased frequency of urine or more urgency that she cannot hold her urine before she reaches the washroom, etc., etc. आपने वो 4 सिम्टम्स फिंगर टिप्स पे होंगे. फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया. व्हाट आर यू एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द यूरिनरी सिम्टम्स? bowel symptoms, that if there is constipation or there is difficulty in passing the stool, or what is you are really expecting, or there is continuous feeling symptoms, and talk about the varicosities and the pedal edema as well. और उसके बाद आप एंड देन दे से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सिनेरियो में. एक तो ये कि स्कैन पे पहले ही मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, और दूसरा ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको मल्टीपल हो चुकी है. सो व्हेन अ पेशेंट इज देयर हु गॉट हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स डन ऑलरेडी, आई थिंक एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया. आवाज आ रही है सबको? जी जी मैम आ रही है. सो आई वाज टेलिंग यू कि बीच में थोड़ा ऐसी डिस्टॉर्ट हो पेशेंट रहा है. जो जी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आई है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी वो भी हिस्ट्री लेनी है कि कितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों, कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, हु गेव हर द ब्लड, वाज इट फ्रेश ब्लड, और क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी. नंबर 1. नंबर 2 ये कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा. जब भी पेशेंट पहले कोई ट्रीटमेंट लेके आया होता है तो पहले कंफर्म करेंगे कि वो ट्रीटमेंट हुई भी, और अगर हुई तो किन हालात में हुई. जैसे अगर वो कोई पेशेंट आपको कहती है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर आई है, तो आप उसे पता करा सकते हो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, बेशक उसे नाम ना आता, आप कह सकते हो कि प्राइमलिटेन को हम आम जबान में पूछ लेते हैं सुनहरी पत्ते वाली गोली, राइट? ऑल्दो इट मे नॉट बी वेरी कंफर्मेटरी, but still you get an idea. But then you ask about the dose, compliance and any side effects. इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप इसी हिस्ट्री को ज्यादा एक्सप्लेनेटरी बट फोकस्ड एट द सेम टाइम करो, यूजिंग वेरी शॉर्ट वर्ड्स, तो आपका बहुत इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गायनी की हिस्ट्री को आप सिम्टम के हिसाब से प्रिपेयर करते हो, टॉपिक के हिसाब से नहीं करते. ऐसे नहीं करते हो कि फाइब्रॉइड की हिस्ट्री में अलग कर लूं और मैं जो हूँ ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री अलग कर लूं. आप करते हो HMB की हिस्ट्री तैयार, आप करते हो मैस एब्डोमेन की हिस्ट्री तैयार, मतलब इन आप
करते हो अनेबल टू कंसीव तैयार आप करते हो यूरिनरी सिम्टम्स की हिस्ट्री अलग. सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ symptoms and then you prepare your history in gynae. ऑब्स में आप टॉपिक वाइज करते हो हिस्ट्री प्रिपेयर. सो ठीक है. सो आपने सो पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है उसको आपने इतना लाइटली लेना. उससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि यू नो हाउ इम्पोर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज फॉर यू. यू डोंट टेक इट एज एन ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोटोकॉल पूरा. ठीक है. और इसलिए लास्ट ट्रांसफ्यूजन का पूछा क्योंकि आपको हो सकता है पेशेंट इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक एनीमिया के साथ बैठी हो बट एक्चुअली वो पता नहीं कितनी सिम्टोमेटिक थी जो उसे ब्लड लगा था. ठीक है. उससे सिवेरिटी ऑफ सिम्टम का आप अंदाजा लगा सकते हो. उसके अलावा ये कि देन क्वालिटी ऑफ लाइफ. यू केप्ट ऑन सेइंग कि मैं एचएमवी को रिलेट करूंगी द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऐसे नहीं. आपने वो डायरेक्ट सिम्टम्स बोलने हैं कि उसको कितना अनीमिया है कितना यूरिनरी प्रॉब्लम है. वी नो दैट फाइब्रोइड में इतना भी यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं होता कि वो उसके लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए. बट यस इसमें ऐसा अनीमिया जरूर हो जाता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो. बट डोंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अगेन या यू कैन यूज इट फॉर वंस बट इंस्टेड आप बताओगे कि किन टर्म्स पे आप उसको एवेल्युएट कर रहे हो. तो हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली है. अब उसके बाद व्हाट ट्रीटमेंट जो आप क्या फोर्सी कर रहे हो खुद के मैं इसके लिए क्या करना चाहूंगी ट्रीटमेंट. उसमें क्या क्या चीजें मैटर करेंगी. उसमें एक चीज ये भी मैटर करेगी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. शी इज प्रीवियस 3 बट यू वुड लाइक टू नो दैट हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स शी हैज एंड is she have if she is having any desire of having more children or not, right? It is also very very important. उसकी वजह ये है कि उससे आपकी मैनेजमेंट प्लान काफी चेंज हो सकती है. और हिस्ट्री में ये चीज आप पता करते हो कि उसकी फर्दर फर्टिलिटी प्लान्स क्या हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद योर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन हम बहुत दफा एक्चुअली कर चुके हैं. ओवरऑल इट वाज नॉट वेरी बैड. बट यस आपने एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जब आप बात कर रहे थे तो यू स्टार्ट विद द बीएमआई. You definitely check the pulse as because she if she is having anemia तो उसकी आपने फिर cardiac evaluation भी करनी है. So you check the pulse and her blood pressure. For anemia you will check conjunctiva और उसके oral cavity और वो सारा कुछ. और थायराइड का एग्जामिनेशन करोगे. वो एक चीज आपने अपनी हिस्ट्री में बहुत अच्छी की थी कि आपने और कॉजेज ऑफ एचएमबी को बड़ा अच्छा रूल आउट किया था. बट अगेन अगर सीक्वेंस ठीक होता ना यानी पहले प्रेजेंट इलनेस को आपने यानी एचएमबी को रूल आउट कर लिया. एचएमबी का ताल्लुक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें स्पेसिफिकली एनीमिया के सिम्टम्स को रूल आउट कर लिया. उसके बाद आपने मैथ्स को लेकर रूल आउट कर लिया और उसके प्रेजेंट सिम्टम्स. फिर आपने और सारी कॉजेज एचएमबी की क्योंकि ठीक है फाइब्रॉइड है लेकिन कोई और कॉज भी तो हो सकता है वो कोई ऐसी मेडिसिन पे हो सकता है कि वो थायराइड का पेशेंट हो सकता है कि वो पहले ही कोई इरेगुलर हार्मोनल थेरेपीज पे हो या एक्सेट्रा या कोई आईयूडी भी साथ में रखी हो उसके एक्सेट्रा. तो वो से कर रही हो तो. और तीसरी चीज ये उसके बाद जो अब तक ट्रीटमेंट ले चुकी है उसको एलैबोरेट करके बात करेंगे. और देन उसकी फर्टिलिटी विशेष और उसका अपना क्या ख्याल है फॉर द मैनेजमेंट. तो ये सारा कुछ जब आप रूल आउट करके फिर आप आते हो फैमिली हिस्ट्री पे. प्रीवियस तो ठीक है वी नो प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन है लास्ट चाइल्ड बॉर्न हो. बायोडेटा को आपने बिल्कुल ही डेमोग्राफिक डेटा बोल बोल के आगे चले गए. बिकॉज एक बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि दिस इस एग्जाम में आपका जो है ये सॉरी एक मिनट ठीक हो गया. इसके अंदर आपका इस तरह के जो केसेस होते हैं वो 2 स्टेशंस पे होते हैं मुश्तमिल विच विल इंक्लूड द फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट स्टेशन विच इज हिस्ट्री एग्जामिनेशन. तो देयर इज नॉट वेरी लेस टाइम. 10 minutes is more than adequate to to explain your history and examination. You can cover everything in the world if you are focused and you exactly know how to present. इसको आपने organize किया. So ठीक है. तो इसलिए आपने अच्छा नहीं, जनरल ज्यादातर जो है ना फाइब्राइड या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो केस मतलब के शॉर्ट केस में ही आता है. स्ट्रक्चर्ड में कम आया है लेकिन स्ट्रक्चर्ड सर ने तो करवाया तो डेमोग्राफिक सर कहते हैं कि ज्यादा उसमें नहीं करे. आपको दी गया सिनेरियो तो दिया गया है ना कि एज भी है इट पेशेंट की डिपेंड्स. और यू लास्ट आर बॉर्न राइट. भी है मुझे और समझ आ गई है. मुझे आपकी जी जी बात समझ आ गई है. हाँ. वो Yes, केस it में is. आपने I पूछना है don't think थोड़ा. so. It this type of viva, fibroid, anemia, hypertension, diabetes ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको 2-2 स्टेशंस पे आएंगे. एक गायनी का केस आता है जो 2 स्टेशंस पे कंप्राइज करते हैं और एक आपका होता है ऑब्स तक पेशेंट.
जो 2 स्टेशंस पे होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री का काफी टाइम होता है और जिसमें आपको मैनेजमेंट में काफी टाइम होता है. सो हाउएवर इफ द होल थिंग इज टू बी डन इन वन स्टेशन, जैसे नायला कह रही है कि आमतौर पे अगर ये क्लिनिकल आ जाता है जस्ट वन स्टेशन, तो यस, लेकिन उसमें भी आपकी स्किल होनी चाहिए कि 2 to 3 मिनट्स में अपनी ऑर्गेनाइज तरीके से पेशेंट एग्जामिनर को कन्वे कर दो कि दिस इज हाउ आई एम डूइंग. यस, उसमें यू डोंट नीड टू. अच्छा, इवन अगर ये आपका स्ट्रक्चर्ड आ रहा है 2 स्टेशन पे एंड यू हैव टाइम, यू डू नॉट नीड टू रिपीट थिंग्स विच आर इन द सिनेरियो. आई एम नॉट सेइंग दैट. सिनेरियो में तो आपको सिर्फ एक एज और पैरा 3 दिया हुआ था. उसके अलावा आप उसका ब्लड ग्रुप भी पता करते हो. उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो आप बायोडेटा में बात कर सकते हो. एक दो बातें बोल के फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोल दो. मतलब वो चीज इतनी भी आपकी हाईलाइटेड नहीं, मतलब मैं नहीं करूंगी क्योंकि इतना बुरा नहीं था, बट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस वाज गुड, बट उसमें थोड़ा एलैबोरेशन चाहिए थी. शायद आप इसको 10 मिनट्स के बजाय आप इसको शॉर्ट स्टेशन ही कर रहे थे कि शायद मैंने इस तरह प्रेजेंट करना है कि मेरा, फिर उसमें भी आपको और फास्ट होने की जरूरत थी. क्योंकि आपकी हिस्ट्री तो टोटल 10 मिनट में खत्म हुई है, जो आपने कंप्लीट अपना पूरा बोला है. इट टुक यू 10 मिनट्स. थोड़ा क्लैरिटी अच्छी है, तो आता भी है आपको. सिर्फ आपने ऑर्गेनाइज करना है और अपनी स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करना है, और दोनों की तैयारी करनी है, शॉर्ट वाले स्टेशन की भी और उसकी भी, जो कि अगर ये 2 पे बना हो स्टेशन, क्योंकि 2 पे अगर बना हो फिर तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बहुत ही ज्यादा मार्क्स होंगे मैम अगर इस ये वजह शॉर्ट से. केस होता तो फिर हमसे पूछते कि आपने जो दवाई ली है अभी तक क्या ली है, प्रामिलेट एन ली है या ट्रांसमिनिक एसिड लिया है, या अभी आपको जैसे कि प्रेगनेंसी आपने कहा कि एक्सक्लूड करनी थी, वाकई करनी है हमें, तो अभी जो है मैंने लास्ट प्रेगनेंसी मिनिस्ट्रल तो आपने पीरियड एक्सक्लूड हर एक में आपका। ही करनी है. प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन तो हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पेशेंट जिसमें HMB है उसमें आपने रूल आउट करनी है. सबसे पहले प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्शन ही तो रूल आउट करना है, उसके बाद आगे हम HMB की हिस्ट्री शुरू करेंगे, चाहे वो छोटा स्टेशन है चाहे वो लंबा स्टेशन है. आपकी हिस्ट्री में चीजें तो वही सारी कवर होंगी, ज्यादा एलैबोरेटेड होंगी अगर आपका थोड़ा लंबा वाला स्टेशन है. और अगर छोटा है तो चीजें तो आपने वही के रूल आउट, प्रेगनेंसी, कोई कॉन्ट्रासेप्शन, इरेगुलर हार्मोनल इनटेक, और फिर पूरे HMB को एलैबोरेट करो जिस वक्त है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके कॉजेज और क्या हो सकती हैं अदर देन फाइब्रॉइड, और अब तक वो क्या ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस करा चुकी है, क्या ये फाइब्रॉइड्स अभी सडन पता चले हैं या प्रेगनेंसी में भी थे तब से चल रहे हैं और अब बढ़ गए. तो ये सारी चीजें आपने इस तरह से हिस्ट्री में कवर कर, और फैमिली हिस्ट्री सीए की, और फिर आप एग्जामिनेशन पे आओगे. एग्जामिनेशन के अंदर आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्चुअली बाकी भी आपका ठीक था, बट उसमें थोड़ा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थोड़ा सा, और जैसे मैं हमेशा कहमन, आपने उसका थोड़ा सा प्रकशन पे कमेंट करना है, और फिर बाय मैनुअल के अंदर अगेन वो आपका ठीक था. लेकिन वही बात है कि देर आर फाइब्रॉइड्स ऑलरेडी गिवन ऑन अल्ट्रासाउंड, विच मीन्स कि यूट्रस नॉर्मल से बड़ी होगी, तो आपने उसको जरा ज्यादा एलेबरेट करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसका कॉन्टूर क्या है, उसका रेगुलर बॉर्डर है या इरेगुलर बॉर्डर है, मोबिलिटी क्या है, टेंडरनेस और फॉलिसिस. इस तरीके से आपने फिर उसका बाय मैनुअल बोलना है. ठीक है. Whenever there is an abnormal finding in any organ when you are doing bimanual, if there is mentioned in ultrasound that there are fibroids, तो obviously uterus का size जो है it's more than normal, and if uterus का size is more than normal, then you have to comment more on the contour, borders, mobility, tenderness, वो सारी चीजों पे comment करेंगे. ठीक है, चलो गुड. किसी ने अभी तक कोई कमेंट ऐड करना है या कोई क्वेश्चन? ओके. सो इन्वेस्टिगेशंस, नाइला आप पूछो, बताओ क्या इन्वेस्टिगेशंस मांगोगे? मैम जर्नल यस नो. इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग कंप्लीट ब्लड पिक्चर विथ डेट। ठीक I है. would like अच्छा, to see साथ the साथ मैं बता, hemoglobin आप percentage, मुझे लिस्ट CLC ऑफ count also. इन्वेस्टिगेशंस बता दो, देन आई टेल यू द रिजल्ट्स आल्सो जी. Okay, ma'am. Complete आप blood ना picture आप ही with that. इन्वेस्टिगेशंस लिख लो, हम शायद मैनेजमेंट आपसे भी सुनेंगे जी नाइला. Or ma'am, blood group of my patient and random blood sugar and mid-stream urine and viral markers, hepatitis B and C, and further investigation including specific ultrasound. जी. तो शायद
जी नायला, अल्ट्रासाउंड TVS। क्या हो देखना है टीवीएस में? मैम रिसेंट अल्ट्रासाउंड pelvis। क्या I would क्या like to see the uterine and ovarian pathology, including the uterine. हम्म, There is endometrial thickness and ovarian morphology also, and over and ठीक any है। सो व्हाई नॉट adnexus, पेल्विक स्कैन, व्हाई टीवीएस? ब्लैडर फुल करा TVS के नहीं आपने ऊपर होगा, से क्यों नहीं स्कैन pelvic कराया? scan होगा। जी जी जी, pelvic scan। देन व्हाई नॉट टीवीएस? आपने तो पेल्विक स्कैन कराया तो व्हाई नॉट माइक्रोसोम टीवीएस? इतनी भी यंग नहीं है, मैरिड है वो, अनमैरिड मैडम वो तो तो नहीं साइज है। ऑफ एक्सक्यूज मैम, वो तो साइज ऑफ फाइब्रॉइड पे डिपेंड करेगा ना। अगर 14 वीक साइज से ज्यादा है तो फिर हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। साइज ऑफ फाइब्रॉइड एंड गुड। एग्जामिनेशन जो हम करवाते एनीथिंग हैं विच यू उनसे आर डिपेंड एबल टू करता है। पैल्पेट ऑन एब्डोमेन? यस, मुझे बताने दो, आप बिल्कुल, योर आंसर इज करेक्ट। एनीथिंग इफ यू कैन पैल्पेट ऑन एब्डोमेन, आप पेल्विक स्कैन कराओगे। अगर एब्डोमेन पे आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर टीवीएस गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स। ओके नायला? यस मोर मैम, हाँ ओवर, TV। अगर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है, जिस तरह से एंडोमेट्रियल पॉलिप का आपको सस्पेशन जा रहा है या क्या हाइपरप्लेजिया की समझ तरफ फाइन जा रहा है। आया नायला? हम्म, पता नहीं, मैं विश ने बात बोल के म्यूट हो गई। सो नायला, आई वाज स्टिल सेइंग कि एनीथिंग जो अगर आप एब्डोमेन से पेल्पेट करते हो तो आप उसको एब्डोमेन वाले स्कैन से देख सकते हो। पेल्विस मिली तो फिर आप टीवीएस करोगे। मुझे महविश की बात समझ में नहीं आई, व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। मुझे ऐसा लगता है वो कह रही है कि अगर हम एब्डोमेन से करेंगे तो पॉलिप का कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली पॉलिप आपको एब्डोमेन पे फील भी नहीं हो रहा ना, इसलिए आप उसमें टीवीएस ही करा रहे हो। ठीक है, यस मैम, पॉलिप में ओके, TVS सो ही गुड। होता है। नहीं मैडम, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है पोस्ट क्यों होता कॉटल है ब्लीडिंग है, टीवीएस इंटरमेंस्ट्रुअल नायला? ब्लीडिंग है, अगर यस एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी आपको लग रही है हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और आपको पीए के ऊपर कुछ नहीं मिला, तो फिर आपने टीवीएस करवाना है। Bleeding, intermenstrual bleeding, it has got nothing to do with TVS or abdominal scan. Anything if you cannot palpate on abdomen, go for TVS. जिसका मतलब यह है कि 12 हफ्ते से बड़ा कोई साइज होगा, 12 वीक से बड़ा साइज होगा, तो यू विल डू द abdominal pelvic scan, abdominal के थ्रू जो pelvic scan है वो करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू palpate any mass on the abdomen, then you'll do TVS। इसमें कंफ्यूजन क्या है नायला, पता चल गया? ठीक है, तो ठीक है महविश मैम। ने कोई हाँ, एडेड कमेंट किया है विच आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों किया। ठीक है, ओके गुड। if the सो fibroid is लेट्स also small प्रोसीड and multiple, नाउ। देखो अब आपने मांगना they are कैसे है, not palpable through abdomen, then we लेकिन go for मैथ्स तो the ऊपर फील हो TVS। जाएगा ना? Yes, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सो टीवीएस से मांगना है या पेल्विक स्कैन मांगना है, तो उसमें आप यू स्टार्ट pelvic विद scan एंडोमेट्रियम। में। आप कहोगे कि आई वुड लाइक टू नो। जी, आई वुड लाइक टू नो, वो तो डिपेंड करता है ना आपके एग्जामिनेशन फाइंडिंग में क्या आया था। सो यू चाहे टीवीएस मांगो चाहे पेल्विक स्कैन मांगो, आपने मांगना क्या है? यू वुड लाइक टू नो अबाउट द साइज ऑफ द यूट्रस, एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। यू वुड लाइक टू नो अबाउट द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, ब्लड सप्लाई, endometrial myometrial echo texture, if there is any mass on the uterus, the size of the uterus, the Figo classification of the fibroid if it is there, and Yes ma'am। then you would like to know about the adnexa, any pathology in the ovaries, or any other pathology in the pelvis. ठीक है, और अगर आपको ओवेरियन मास की ज्यादा सस्पिशन है तो यू वुड लाइक टू नो यूनिलैटरल मास और बायोलैटरल मास, द कैप्सूल थिकनेस ऑफ द कैप्सूल, ब्लड सप्लाई, सेप्टेशंस, इंटरनल डेब्री, वो सारा कुछ फिर आप कमेंट करोगे। ठीक है, आई होप के दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द टीवीएस और अल्ट्रासाउंड Yes टेस्ट। ma'am। आपने ऐसे नहीं मांगा था। सो इस तरीके से, सो ओके गुड। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पेशेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स मांग सकते हो। और किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है, अगर थायराइड के सिम्टम्स होते हैं तो हम थायराइड का टेस्ट भी मांग लेते TVS हैं। टेस्ट करवाएंगे जी। सॉरी, मैडम
T3, T4 level and the TSH. ठीक है, एसिम्टोमेटिक में भी आप मांग तो सकते हो, इट्स ओके, जी बट मैम, अगेन करवाते अगर हैं हम। सिम्टम्स हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। और कुछ, ये थायराइड की बात ये है, देखो दो ऑप्शन है वैसे, आप टीएसएच अदरवाइज भी हर ब्लीडिंग वाले में मांग सकते हो, बट इफ देयर यू ऑलरेडी नो कॉज कि फाइब्रॉइड है जो इंडेंट कर रहा है कैविटी को, और तो उसके अंदर मतलब हमें कॉज मिल गई है और देर आर नो सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिजीज इन द पेशेंट, तो फिर थायराइड के टेस्ट अलग से कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर थायराइड उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फाइब्रॉइड भी इस तरह के आपको लग रहे हैं कि नहीं कॉज करे ब्लीडिंग, फिर करा लोगे, ठीक है, गुड। और पैप्समेयर स्पेशली, जी, अगर उसकी यस मैम, रिपोर्ट पेप्सी ने अवेलेबल है। पूछा था। और गुड। सो इसके मैं आपको ब्लड टेस्ट बताती हूँ, जाहिर है अगर अनीमिया बताऊंगी तो फिर अनीमिया का पूरा वर्कअप भी हम मांगेंगे। आगे उसको ब्लड लग रहे हैं, पता नहीं थैलेसीमिया की ना पेशेंट हो। सो इस पेशेंट की हीमोग्लोबिन 8 है, ठीक है। हर लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज जी 3 months बैक। ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, बाकी सारा कुछ नॉर्मल है इसका। मैम, रेड और सेल टीवीएस के इंडाइसिस अंदर या इंक्लूडेड। अल्ट्रासाउंड के अंदर, जी, मैम, रेड सेल जी, इंडाइसिस किसी ने कुछ, MCH, MCHC and MCV. MCV, सारा कुछ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, एंड इट्स एन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ये वर्कअप उसका पहले हुआ है। ओके। और थायराइड के टेस्ट भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तकरीबन 6 to 7 दिए हुए हैं, एंड द लार्जेस्ट वन इज 4 into 5 centimeter, एंड मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। rosal and two and intramural which are indenting the cavity. Fibroids हैं total 6 to 7 in number. Largest one is 4 into 5 centimeter, and they are multiple present on indenting the cavity also. So how will you proceed? अब आवाज आ रही डिस्टॉर्टिंग द कैविटी, मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड बताया आपने, आप 6 to Yes, 7 centimeter लार्जर फाइब्रॉइड that distorting the uterine cavity good. अब बताओ, is the how are you? intramural fibroid. इसकी मैनेजमेंट आपने बोलनी है, आप बोल लो, वरना आमना से सुन लेते हैं। व्हाट डू यू से, थोड़ा सा आमना से मैनेजमेंट सुनते हैं, ठीक है नायला? Yes मैम। जी जी, ओके आमना, आपने नो प्रॉब्लम। सिनेरियो पूरा सुन लिया? यस मैम। चलो आप इसकी मैनेजमेंट पे कमेंट करो प्लीज। जी। First of all, I will offer support to my patient. I will explain the diagnosis that she has a heavy menstrual bleeding due to the fibroid uterus, and she also has a moderate anemia. I will manage my patient in liaison with consultant, gynecologist, anesthetist, and senior staff. I will tell my first of all, I will tell my patient that there are the different treatment options available. In the history, as already Dr. Naila asked that what treatment she has taken, so I will ask, Madam, please tell me what treatment she has taken before. So I will counsel her शी हैज नॉट बीन गिवन accordingly. एनी ट्रीटमेंट, जी मैम, आवाज कट रही है उसे आपकी। कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। सॉरी, मैंने कहा उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली अभी तक। शी हैज नॉट टेकन एनी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Okay. I will I will tell my patient that as she has further fertility wishes. She is para 3 and her age is 35 years of age. That is, she is too young. So I will The tell her patient about is the not different. having any more fertility wishes. Excuse me. She is para जी जी. 3, previous 3 cesarean section. She doesn't want to conceive anymore. She has 2 girls and 1 boy. She says she has no Okay. fertility wishes. Okay, ma'am. So I will counsel the patient that there are the different treatment options available in the form of the conservative treatment, and which include the non-hormonal and the hormonal treatment and the surgical treatment. But as my patient is previous 3 and history of the blood transfusion, her quality of the life is already फेल। so much affected. सॉरी, So I will सॉरी, इधर ही start खत्म बात। बात खत्म हो गई आमना, surgery. बात खत्म हो गई, वाइवा फेल हो चुके हैं, ठीक है ना? आपने स्टार्ट अच्छा लिया था, लेकिन शी इज हैविंग मल्टीपल फाइब्रॉइड, शी इज हैविंग मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। डू यू थिंक कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से काम चलेगा या हार्मोनल ट्रीटमेंट से?
Madam, for time being, when I will build her HB, then I will give her Do you think for non-hormonal test. time being also? Yes, ma'am. No, ma'am. तो फिर मैंने जी तो इधर शुरू पहली लाइन में फेल कर दिया आपको, ठीक है ना, इतना अच्छा स्टार्ट लेके, बट आपके 4 आउट ऑफ 10 आ गए उस स्टेशन पे। yes, अब पता नहीं आगे yes, कवर हो या ना हो एग्जाम में, क्योंकि ये वो स्टेशन है जिसमें हर बंदा मिनिमम 55-60 ले रहा है। आपने तैयारी करके जानी है 70 की, क्योंकि ये वो स्टेशन है जो आपको बाकी मुश्किल स्टेशन में कवर देना है जिसने। सो बी वेरी विजिलेंट, और आपने बड़ा सेंसिबली वहां पे करना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए। एक okay, पेशेंट जो madam. मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के Hmm. साथ आ रही है, चलो फिर से ट्राई करो, शाबाश। Okay, as my patient is para 3 and she is previous 3 with HMB and she has no any further fertility wishes. So I will give her advice regarding the surgical options. हम्म, Before ठीक है। doing her surgery, I will build her HB. My aim is to keep her HB greater than 11 gram per deciliter before her surgery. For this, I will give her blood transfusions further. ठीक है। हाउ मेनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी यू आर प्लानिंग? I will planning for myomectomy. ओके, सो हाउ मेनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यू विल गिव टू हर? I will give her 3 blood transfusions. ओके, हाँ, और किस तरह से, एक दिन में ही 3 लगा दोगे? No, no, ma'am. On alternate days, I will or on daily basis. ठीक है। किसी ने और ने कहा है मैं वॉलंटियर करूंगी, कौन है? सना जी, सना आप क्या बोलोगे? आप एक दफा बोल दो, फिर हम सबकी बात मैं आपको फिर बताती हूँ जी। सना। Madam, I will offer support to the patient, explain the diagnosis that it is a fibroid, it is a benign condition, and it is a treatable condition. As my patient is para 3+0, and so I will admit my patient, I will transfuse the 1 pin PCV, and meanwhile, I will plan her surgery before the next period is started. So I will give the different option, as my patient is para 3, and so I will give the option of open myomectomy versus the hysterectomy. As my patient has severely quality of life is affected, and if she want to conserve her uterus, so I will give the option of open myomectomy, because the recurrence rate is the only 10%, and I will also arrange the blood before surgery 2 pin at least. चलो गुड। अच्छा, मैं बताती हूँ, सना वाज मच बेटर देन ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स, लेकिन इसको और इम्प्रूव हम करेंगे। कैसे मच बेटर? क्योंकि इसकी बात सुनते ही एग्जामिनर सोया हुआ एकदम से उठ गया कि ये कुछ डिफरेंट बोल रही है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें बोली है। शी टोल्ड द डायग्नोसिस टू द पेशेंट, ठीक है। आमना, यू वर ऑल्सो गुड, आपने भी बड़ा अच्छा शुरू में स्टार्ट किया था। सो काउंसल किया पेशेंट को, डायग्नोसिस बताया। गायनी के अंदर पहली चीज जो पेशेंट सुनना चाहता है वो ये सुनना चाहता है कि एक मैस है, इज इट बिनाइन और malignant? तो इट इज अ बिनाइन कंडीशन एंड इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, एंड ऑल हर सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रोइड्स, ठीक है। पहली चीज तो पेशेंट को ये बताओ। आमतौर पे पेशेंट डायग्नोसिस सुनना चाहता है, बिनाइन है, malignant है या नहीं, ट्रीटेबल है या नहीं, यानी उसकी जान छुटेगी सिम्टम्स से या नहीं, और तीसरी चीज ये कि वेदर शी नीड्स एडमिशन और नॉट। सो अगर आपकी काउंसलिंग में ये 4 चीजें एक ही लाइन में बड़े फोकस तरीके से कवर हो रही हो, तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ऑफर सपोर्ट टू द पेशेंट वुड, इंस्टेड ऑफ saying all the, ठीक है यार, ऑब्वियसली, मतलब आप अपनी काम की बात बोलो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर सपोर्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू हैव फ्यू सेकेंड्स, और आपने उस स्टेशन में 70% लेके उठना है, ठीक है। तो आई विल काउंसल माई पेशेंट that she is having fibroid uterus and her symptoms are probably because of these. Cyrus officer तो अल्लाह को पता होगा। From history examination and investigation, it seems that all her symptoms are because of these fibroids. It's a benign condition and it is 100% treatable, ठीक है ना। तो पहले तो उसे ये बताओ, कंसिडरिंग दिस, उसकी ट्रीटमेंट बेशक बोल दो कि फाइब्रोइड्स कैन बी ट्रीटेड ओनली विद द सर्जिकल इंटरवेंशन, फॉर विच आई वुड लाइक टू एडमिट हर, बिकॉज हर लास्ट पीरियड है, जिसकी बात शायद हिस्ट्री में हुई नहीं, हालांकि वो कितना इंपॉर्टेंट था। वही बात है कि अगर बायोडेटा पूरा हो रहा हो तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग। Her last period date is 1 month apart, or after 2 weeks at least. So I have 2 weeks to build her HB before her surgery. ठीक है ना।
तो एंड आई हैव टू प्लान सर्जरी बिफोर नेक्स्ट पीरियड्स, क्योंकि मैं अभी ब्लड लगा दूं या मैं अभी आयरन लगा दूं और हफ्ते बाद उसको पीरियड्स हो जाएंगे, तो ऑल हर आयरन और वो सारी चीजें उसकी उसमें वेस्ट हो जाएंगी। सो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट में आपको क्या क्लैरिटी चाहिए कि आपने सर्जरी करनी है, कब करनी है, उससे पहले अनीमिया को कैसे ठीक करना है, ये बहुत है, और क्या प्रिपरेशन उससे पहले होगी। ठीक है, तो आपने एक लाइन में जब ये सारी बातें बोल दी, उसके बाद आपने करना है कि आई विल डिस्कस विद हर ट्रीटमेंट ऑप्शन। ऐसा ना, जब भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बोलेंगे, उसमें पहली ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके मुंह से वो निकलेगी जो आप देना क्लिनिक पे चाहते हो। बैठे हो तब भी, जब आप एग्जाम में होगे तब भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले आप बोल रहे हो, पेशेंट विल अंडरस्टैंड कि दैट्स अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। ठीक है, अगर आपने बोला पहले मायोमेक्टमी, तो इट मीन्स दिस वाज अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू फॉर द पेशेंट। सो यू सेड कि ओपन मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी, and she's young, so if she wants to conserve her uterus, I will go for open mammectomy. That's what you said. And उसके बाद में, because there is less than 10% chance of recurrence after open mammectomy. But इस चीज को थोड़ा और elaborate करो, that मुझे सब तो समझ आ गई कि why you were giving us recurrence rate with open mammectomy etc, क्योंकि you were trying to compare it with the laparoscopic mode। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आप फिर बोलो भी ना, कि फिर आप बोलो मायोमेक्टमी वर्सेस हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी में आई विल डिस्कस विद हर द रूट ऑफ सर्जरी विच इज ओपन मायोमेक्टमी। ऑब्वियसली जो पहले आप बोल रहे हो वो बेहतर है, क्योंकि आपने एग्जाम में टाइम सेव करना है। जैसे अभी कोई मैनेजमेंट बोल रहा था, जैसे आमना बोल रही थी, आई हैड टू आस्क क्वेश्चंस के व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल और सर्जरी। ये एग्जामिनर बोल क्वेश्चन करेगा, आप बोलोगे, दिस विल वेस्ट टाइम। अगर आपने वहां गेम ही सारी टाइम की है, आपने अपनी सारी चीज कन्वे करनी है थोड़े से टाइम में। सो आपने मैनेजमेंट बोलनी शुरू की, यू सेड मायोमेक्टमी वर्सेस हिस्टेरेक्टमी अकॉर्डिंग टू सना। ठीक है, मैं सना को इस वक्त करेक्ट कर रही हूँ, कोई और कुछ और भी मुझे कह सकता है, क्योंकि देर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो। सो इफ यू आर सेइंग मायोमेक्टमी वर्सेस हिस्टेरेक्टमी, तो फिर पेशेंट इफ शी वांट्स टू कंजर्व यूट्रस, मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी के डिफरेंट मोड्स हैं। वाई ओपन, बिकॉज इट्स अ बिग यूट्रस, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, ओपन के अंदर कोई रिकरेंस नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर हिस्टेरेक्टमी है तो उसके अकॉर्डिंग है। एंड देन सना ने तो किया, हालांकि सना को मैं इस पे और ज्यादा तंग कर सकती हूँ कि यू आर डूइंग ओपन मायोमेक्टमी और रिकरेंस है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर आगे क्या करेंगे। किसी और ने अगर ट्राई करनी है मैनेजमेंट तो बोल दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर मेरे से आप पूछो तो मैं तो ये कहूंगी, आपकी अपना ओपिनियन भी हो सकता है, यू शुड नो हाउ टू जस्टिफाई योरसेल्फ इन अ लॉजिकल वे। ठीक है ना, एंड विद गुड एविडेंस और रेफरेंसेस। मैं तो इस पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी वर्सेस मायोमेक्टमी बोलूंगी। रीजन इज दैट हर फैमिली इज कंप्लीट, शी इज हैविंग सो मच हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कि वो उसके ब्लड लग रहे हैं। डिस्पाइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगेन शी इज हेयर with 8 hemoglobin. She is 35 years of age, right? Although she is young, but even then, क्या अभी मायोमेक्टमी करके भी अगर उसकी ब्लीडिंग सेटल ना हुई, तो इससे बड़ा क्या फेलियर होगा कि फिर उसे ब्लड लगवाना पड़ जाए सर्जरी के बाद भी, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। सो मेरी जस्टिफिकेशन इसके लिए ये होगी कि आई विल ऑफर पेशेंट हिस्टेरेक्टमी वर्सेस मायोमेक्टमी। Hysterectomy because she already had so many blood transfusions. She's suffering a lot because of HMB. And even after blood transfusions, she's here in front of me with a hemoglobin report of 8. As her family is complete, yeah, there are no further fertility wishes. I would offer her hysterectomy. ठीक है, वो अब आपके स्किल्स उस पर डिपेंड करता है, प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। और उसकी फिर मैं क्या प्रिपरेशन करूंगी, हर नेक्स्ट पीरियड डेट इज फॉर एग्जांपल 10 days away. आई वुड लाइक टू अरेंज ब्लड। हाउ मच ब्लड? टोटल ऑफ एटलीस्ट 4 ब्लड। पहला मैं इसको आज लगाऊंगी बिकॉज अभी 10 days है, आई कीप her इन द हॉस्पिटल। अगले दिन मैं अगला लगाऊंगी, आई विल रिपीट her hemoglobin. When our HB is more than 10, I will keep 2 blood in hand and then we'll do the laparoscopic hysterectomy. और फिर पोस्ट ऑप क्योर हो सारा कुछ, कंजर्विंग हर ओवरीज। वाई कंजर्विंग हर ओवरीज? बिकॉज देयर वाज नो फैमिली हिस्ट्री, ये बोलो वहां पे, बिकॉज देयर वाज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ CA, breast, ovary or uterus in the family, and also intraoperatively and in ultrasound also your ovaries were normal, okay, and she's very very young. So I would like to conserve her ovaries and will do hysterectomy. So this is how I will justify. अगर आप मायोमेक्टमी जस्टिफाई करना चाहते हो तो उसे और इलेबोरेट करो। आप कहोगे कि पेशेंट इज 35, शी इज वेरी यंग। हालांकि मैं तो इस चीज को नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुंह से निकल ही गया मायोमेक्टमी और अब आपने वो एग्जाम में जस्टिफाई करना है, तो आप कहोगे कि पेशेंट ही की
एब्सोल्युटली विश नहीं है यूट्रस निकलवाने की, नंबर वन। नंबर टू, शी हैज गॉट सोशल इश्यूज जिसकी वजह से शी डजंट वांट टू गेट हर यूट्रस रिमूव्ड। सो इस वजह से मैं इसको माइमेक्टमी ऑफर कर रही हूँ ओपन माइमेक्टमी में। एंड देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि उसको फिर नहीं होगी ब्लीडिंग। और अगर फिर हुई तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज उसने रिफ्यूज कर दी थी माइमेक्टमी इसलिए। और अगर कोई पेशेंट विद फर्टिलिटी विशेज है, मे बी विद सब फर्टिलिटी एचएमबी एंड फाइब्रॉइड, उसमें तो डेफिनेटली हम ये करेंगे कि हम उसका यूट्रस को वो कर देंगे, कंजर्व ही करने वाली सर्जरी करेंगे। और अगर सिंगल फाइब्रॉइड है, फर्टिलिटी कंप्लीटेड है और सारा कुछ, उसमें आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी ऑफर कर सकते हो। एंड इफ शी इज अबव 40 अगेन, अगर सिंगल फाइब्रॉइड है तो भी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन पहले ऑफर कर सकते हो हिस्टेक्टमी से। सो दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट इट। ठीक है, किसी ने कोई और कमेंट करना है तो बताएं। मैम हम अगर लेप्रोस्कोपिक रूट प्रेफर कर रहे हैं तो मैम प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस भी तो हैं मैम, वो ऑल्टर करेगा इसका मोड ऑफ सर्जरी? Is there previous surgeries, either cesareans or laparotomies or anything else, laparoscopic route is better than open। उस आवाज आ रही है? So I was saying that अगर patient के previous surgeries है, either cesarean or previous laparotomy or anything else, laparoscopic route is always better than open route, क्योंकि उसके अंदर एडिजियोलाइसिस हमेशा ज्यादा बेहतर होता है ओपन से। क्योंकि उसमें मैग्निफाइड व्यू आता है, प्लेन ऑफ क्लीवेज आपको ज्यादा अच्छा नजर आता है और ज्यादा अच्छा डिजुअलाइसिस हो जाता है, कम ब्लड लॉस होता है। सो लेप्रोस्कोपी इज ऑलवेज बेटर, बट यू शुड हैव स्किल्स एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ठीक हो गया। मैम सो फाइब्रॉइड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है जी। वेलकम सर। मैडम मैंने एक बात पूछती थी, ये जो हम बुक्स में पढ़ते हैं मैग्नेटिक जी जी ना, इंटेंसिटी हाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाई फोकस्ड जो यू वो शुड नो करते हैं दैट इट्स नॉट अवेलेबल। यस, अच्छा एमआरआई वाले। जी जी हम्म जी जी मैम, वो थैंक यू आपको मैडम। रिसेंट एडवांसेस में पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल है वो बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली वेलकम। सो प्रैक्टिकली क्या आपको पता होना चाहिए? एक तो यंग पेशेंट है जिसने कंसीव करना है, डेफिनेटली उसमें तो माइमेक्टमी होगी। अगर पेशेंट है, उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसको सिम्टम्स हैं तो, और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो यस, फिर तो हिस्टेक्टमी होगी। यंग है, सिंगल फाइब्रॉइड है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यू कैन ऑफर इवन आफ्टर 40 ऑल्सो। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, फैमिली कंप्लीट है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप की, आप उसे हिस्टेक्टमी ऑफर कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि वो कितनी सर्जरीज कराएगी। ठीक है, इवन इफ अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू, बिकॉज ये वाला आप सिनेरियो बड़ा डिफिकल्ट है जो मैं बताने लगी हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट होते हैं। I've seen these types of patients. She's in her 10, 20s, for example. She's having HMB. She's unbनी हुई है। आप उसे माइमेक्टमी तो ऑफर करोगे, बट उसे रिकरेंस भी बताओगे। इन एनी केस हो सकता है कि उसे जिंदगी में और भी सर्जरीज करानी पड़े। समटाइम्स अ पेशेंट ऑलरेडी प्रेजेंट्स टू यू और उसने पूरी रिसर्च की होती है, एंड शी सेज के आई जस्ट डोंट वांट टू कंसीव एंड आई वांट हिस्टेक्टमी। तो even this, in this type of patient, getting another major surgery done after myomectomy, because we know कि myomectomy के बाद एक और मेजर सर्जरी भी कोई इतनी आसान काम नहीं है। ठीक है, तो instead of that, and if patient is sure of this thing कि उसने यूट्रस ही निकलवानी है, तो यूट्रस, तो ये नहीं है कि बिल्कुल ऑप्शन खत्म है उसके लिए, because she is unmarried or because she is nulliparous। तो अगर वो खुद आकर ये कर रही है और शी डजंट वांट, क्योंकि कल को अगर एक और सर्जरी और खुदा ना खासा उसकी वो मॉर्बिडिटी कोई बिकॉज ऑफ द सेकंड सर्जरी ज्यादा हो जाए, तो वो ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि अभी 20 years मेनोपॉज को पड़े हैं उसके, और उसका रिकरेंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें पेशेंट के साथ क्लैरिटी बहुत जरूरी है बिफोर डिसाइडिंग फॉर माइमेक्टमी वर्सेस हिस्टेक्टमी। मैम अस्सलाम वालेकुम सिमिलर मैडम। पेशेंट 5 years से अबव ये हो जो तो फिर उसमें मायोमेक्टमी फर्स्ट ऑप्शन देंगे या हिस्टेक्टमी? किसको? मैम अगर एज 45 years से अबव है। 45 से बस तो आपने देनी हिस्टेक्टमी ऑप्शन है, उसने यूट्रस रख के क्या करना है? मैम ये कुछ तो मेंटोर्स कहते हैं कि वो मेनोपॉज के करीब है तो आप हैं उसकी मायोमेक्टमी मतलब। अच्छा,
45 उसकी एज है, मेनोपॉज उसको फॉर एग्जाम्पल 51 पे जाकर होना है, या और भी करीब कर लो 48 पे होना है, 3 साल अभी पड़े हुए हैं, आपने उसके आज के दिन मायोमेक्टमी की है और 3 महीने बाद वो फिर एचएमबी के साथ आ गई है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर? आपको तो जाकर छुप जाना चाहिए कहीं पे। प्लीज डिसीजन बहुत क्लैरिटी से करना है। 45 पे यूट्रस बचा के क्या हासिल कर लिया आपने? और मैडम एक अबव चीज और, 45 हमने any patient who is developing fibroid, especially after 45, एक मिनट, I'm not sorry, मैं बोलूं फिर आप बताना. जी जी Any जी patient who is having fibroid after 45 has got tendency of having endometrial hyperplasia or polyps. Because same factors जो fibroid बनाते हैं वही factors hormonal, estrogen या वो सारा कुछ endometrial hyperplasia या polyps भी करते हैं. तो diagnostic DNC biopsy, endometrial biopsy करके myomectomy के बजाय hysterectomy should be done आफ्टर 45. ठीक है जी, आमना आप क्या कह रहे थे? मैडम मैं कहती कि हिस्टेक्टमी के साथ हम बीएसओ भी करेंगे ना आफ्टर 45 तो टीएच नॉट बीएसओ नेसेसरीली, किसी पेशेंट में बीएसओ नहीं ओके करेंगे। बीएसओ आपने तब करनी है इफ जी देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए, ओवरी, यूट्रस, एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट प्रेजेंट। ठीक नंबर 2, अगर जी 45 के बाद आपको ओवरीज में कहीं इंट्रा ऑपरेटिव सॉरी ओवरीज में अल्ट्रासाउंड में प्री ऑपरेटिवली सिस्ट आई हो। नंबर 3, इंट्रा ऑपरेटिवली आपको अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में कोई पैथोलॉजी मिली है, ओनली देन यू विल डू जी मैम बीएसओ, अदरवाइज यू विल नॉट जी डू मैम बीएसओ, चाहे वो ओके पोस्ट थैंक यू मैम मेनोपॉज हो। वेलकम। ठीक है, नीलम ने कुछ अस्सलाम कहना था। जी जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डॉक्टर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि इफ द पेशेंट एज इज ग्रेटर देन 45 years and and beside the hysterectomy should we give the option of GnRH in intermittently way? अच्छा, अब इसकी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो मैं अक्सर मायोमेक्टमीज या हिस्टेरेक्टमी या फाइब्रॉइड की सर्जरी में बात कर चुकी हूँ। जीएनआरएच का कोई ताल्लुक है नहीं फाइब्रॉइड से। गिव्स यू मोर साइड इफेक्ट्स, इट्स मोर एक्सपेंसिव। अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में बहुत लोग एंटर हो गए हैं, सर्जन को पता भी नहीं है, अब उन्हें लगता है कि शायद गायनोकोलॉजिस्ट कोई लिख देते हैं तो हम भी लिख दें, और पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो इट्स डेvastating फॉर हर, मतलब बहुत ही बुरी हालत। तो प्लीज जीएनआरएच का कॉन्सेप्ट, एक तो जो आपको सारा अपनी फिजियोलॉजी से पता है वो तो जरूरी है बिफोर यू प्रिस्क्राइब जीएनआरएच। सेकेंडली, फाइब्रॉइड के अंदर आपने क्या करना है, व्हेन यू डूइंग सर्जरी देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग जीएनआरएच। आपने इतना महंगा इंजेक्शन लगाया, साइड इफेक्ट्स अलग, उसके बाद यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्या फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो जाएगा, बट इससे इसके ये सिर्फ आपने तब बोलना है अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि हाउ विल यू रिड्यूस इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस इन अ सर्जरी जिसके अंदर आप फाइब्रॉइड की या तो माइमेक्टमी करने जा रहे हो, हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी में तो आपने जवाब देना है कि मुझे कोई इतना कोई टेंशन नहीं ब्लड लॉस की, बिकॉज वंस आई रीच द यूट्राइन आर्टरी एंड आई यू नो ऑब्लिटरेट द यूट्राइन आर्टरी, जब मैंने यूट्राइन आर्टरी पकड़ ली या काट ही दी वो वाला लिगामेंट, तो फिर तो ब्लड लॉस वैसे ही मिनिमाइज हो जाएगा और वो हम बहुत जल्दी यूट्राइन आर्टरी पे पहुंच जाते हैं। उससे पहले हमने सिर्फ राउंड और ओवेरियन लिगामेंट के बाद ब्रॉड लिगामेंट खोलते हैं और ब्लैडर पीछे की और वही यूट्राइन आर्टरी मिली, और जब यूट्राइन आर्टरी पकड़ी गई तो उसके बाद क्या ब्लड लॉस होना। हाउएवर इन मायोमेक्टमी आप कह सकते हो कि प्री ऑपरेटिवली जीएनआरएच दें तो इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस कम हो जाता है, बट उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो आपने बताने हैं, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली, ड्यूरिंग सर्जरी जीएनआरएच की वजह से आपकी सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है, यू डोंट गेट द राइट प्लेन्स, यू गो मोर इनटू द मायोमेट्रियम एंड यू रीच द एंडोमेट्रियम, और आप वो सारा भी डैमेज कर रहे होते हो, तो वो फिर मसला हो जाता है। मैम एक नली पेरिस है, 36 इयर्स की है, उसका इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और पेशेंट अनमैरिड है। फाइब्रॉइड का साइज 7 हम्म सेंटीमीटर है और इंट्राम्यूरल। हम्म मैम इसको हम हम्म मतलब क्या ऑप्शन देंगे? और अभी उसकी कुछ 3-4 मंथ्स के बाद शादी इफ भी शी है। इज अनमैरिड यू वुड डेफिनेटली, बिल्कुल, तो फिर तो मायोमेक्टमी ही करेंगे ना, तो इसके अंदर आप फिर आई वुड लाइक टू डू लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी बिकॉज इट्स अ सिंगल फाइब्रॉइड, और ऑब्वियसली इसका ओवरऑल उसमें इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आपने वेसोप्रेसिन भी यूज करना है टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, क्योंकि जितना ब्लड लॉस कम होगा उतना उसकी एडिशंस कम बनेंगी। Then you should use the anti-adhesive, which is the hyaluronic acid at the end of the surgery, ताकि इसकी ट्यूबल पेटेंसी ठीक रहे। शी इज अनमैरिड, उसकी भी शादी होनी है, एंड देन शी विल कंसीव आल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है।
जी। मैम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन दे सकते हैं फाइब्रॉइड के पेशेंट को, यूट्रस कंजर्व करना चाहती हूँ तो। वही तो मैं बता रही हूँ, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का एक बात याद रखना, गायनी से बहुत कम नहीं लेना देना, ये मैल प्रैक्टिस है हमारी। वही बात है, अगेन अनफॉर्चुनेटली बार बार हमारी फील्ड में लोग एंटर हो गए हैं, वो गलत यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बस जस्ट दे आर जस्ट doing it, they have nothing to do with the gynae, उन्हें नहीं पता वो क्या आगे कर रहे हैं। हर फाइब्रॉइड में वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन किए जा रहे हैं, पेशेंट्स की फर्टिलिटी खराब हो रही है, बाद में पेशेंट्स कंसीव करें भी तो प्लेसेंटा एक्रीटा बनते हैं, आईयूजीआर्स बनते हैं या आईयूडीज होते हैं पेशेंट के। और फिर और क्या होता है कि फाइब्रॉइड में वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, तो होता क्या है कि 10 या 20% असर हो जाता है, और देन आई हैव सीन दीज पेशेंट्स के वो एक बड़े से फाइब्रॉइड के साथ कंसीव करके आ जाती हैं, और फिर जो उस बड़े से फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी की मॉर्बिडिटी लेकर चलते हैं, वो एक अलग चीज। मतलब देर इज नो पॉइंट इन डूइंग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इन अ पेशेंट व्हेन यू डोंट हैव अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ द होल थिंग। उन लोगों को गायनी की नॉलेज नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट है अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से व्हाट, और फिर मैंने तो ओवेरियन सिस्टारों में से किसी एक में अल्लाह की तरफ से अगर फर्क अच्छा आ गया है, तो आप ये समझो कि अब मैं हजारों में ही किए जाऊं और इनमें से एक को फायदा और 900 को नुकसान हो रहा है, तो चलो मैं तो करी जाऊं ना। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि आप उसे एक कामयाब को ही रेफर करके किए जाओ। तो यू शुड डू द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन उसमें जिसमें फैमिली कंप्लीट है, हमारी गायनी की गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहें कि इनफर्टिलिटी में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करो। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज टू बी डन इन अ पेशेंट हु डजंट वांट टू कंसीव एनीमोर, जिसका सिंगल फाइब्रॉइड है। जितना मर्जी क्लेम कर दे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में हम ये कर, उनको नहीं पता गायनी की एनाटॉमी। तो हमने खुद अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट फील्ड के लोगों को अपनी फील्ड में एंटर करा लिया, विच इज रॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ही कई लोग प्रमोट करते हैं उन लोगों को, विच इज रॉन्ग। तो इससे ओवरऑल कंट्री में वुमेन हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो हमें एज गायनोकोलॉजिस्ट वी शुड नो कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रेफरेबली जिसमें फैमिली कंप्लीट हो गई है, नंबर 1 सिंगल फाइब्रॉइड है, ओके उसमें आप ऑफर कर सकते हो, टेलिंग है द फेलियर रेट एंड यू नो द साइड इफेक्ट्स, कि ओवरऑल ओवरी का रिजर्व भी कम हो सकता है, वो सारा कुछ। तो बट वांट्स टू कंसीव, उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा गायनी में और कहीं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ओवेरियन सिस्ट में कर रहा होता है, कोई एडिनोमायोसिस में कर रहा होता है, और पेशेंट्स बेचारियां 5-5 6-6 लाख भी दे रही हैं एंड दे सफरिंग अनफॉर्चुनेटली। जी। मैम ये जीनत के सिमिलर क्या कहना है? पेशेंट थी, इसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की थी और उसको उससे रिएक्शन हुआ था, फिर वो ये रेडियोलॉजिस्ट ने उसको ऑफर की थी और उसके बाद रिएक्शन हुआ। अभी वो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आई थी, तो हमने उसको मायोमेक्टमी का ऑप्शन दिया हुआ है। I have seen so many patients. I have also seen a patient who conceived after uterine artery embolization and she had an unexpected placenta accreta. You know, and then I have seen patients ending up in IUGR at 20 weeks or so, और फिर उसके बाद decrease Leica in a very initial stages, और फिर decrease Leica में obviously anomalous बच्चे और वो सब। So the thing is कि ये सारी सीक्वलें रेडियोलॉजिस्ट कैन नॉट नो बिकॉज उन्होंने गायनी नहीं की। उनको यूट्रस की एनाटमी, ब्लड सप्लाईज ओवरी की, मैं आपको बता रही हूँ अनफॉर्चुनेटली एडिनोमायोसिस में शुरू हो गई। और अनफॉर्चुनेटली और जो लोग हैं जो बड़े भी हैं, दे आल्सो प्रमोट देम, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे कंट्री में वुमेन हेल्थ इफेक्ट हो रही है। बट आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए एज गायनोकोलॉजिस्ट के कहाँ पे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इफेक्ट कर सकती है और कहाँ नहीं, और क्या चीज बेहतर है। ठीक है जी। जीनत हैंड उसने उठाया हुआ है, ओके। सो द थिंग इज, और कोई क्वेश्चन? आई थिंक मैंने क्विकली बातों में बहुत सारे सिनेरियोज कवर करने की कोशिश की है 5 के। मैम एक सवाल पूछा था। मैम आजकल गाइडलाइन में जीएनआरएच का रोल मैम नहीं आ अरूबा, रहा, हाँ जी। इवन इन मैम अरूबा एक लेप्रोस्कोपिक क्वेश्चन पूछना था। मैमेक्टमी। तो मैंने तो बोला है मैम जी, बोला जी, किससे क्वेश्चन करना है? मैम अरूबा एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जीनत या तो आप टाइप कर दो। जी जी जरूर।
मैम जीनत बात कर रही हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, वो ना सीपी चाइल्ड थी ना, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज ना, और उनको ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी ना। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मतलब बाय योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू से, इनकी मदर की डेथ जो है ना ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी ना, तो वी हैड एन ऑप्शन कि या तो हम उनको एक ही दफा मतलब मायरेना रख लें और फिर कुछ करें, या फिर हिस्टेक्टमी और बायलैटरल सेल्फ इंज्यूरी। मैम आप क्या कहती हैं कि क्या बेहतर होता है इस लड़की के लिए? मुझे सॉरी फिर से बताएं, क्या एज है पेशेंट की? कोई और बता दे। आई थिंक मैम जीनत पेशेंट नेट का 35 प्रॉब्लम है, इयर्स फिर ऑफ से एज सिनेरियो थी बताएं। और सीपी चाइल्ड थी ना, हम्म। डिपेंडेंट। अच्छा ठीक है। मैम पेशेंट जो है ना वो सीपी चाइल्ड थी, 36 इयर्स ऑफ एज थी, और मदर की हिस्ट्री डेथ थी ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर से डेथ थी उन मदर की। तो मैम मैं ये पूछ रही थी कि इनमें क्या बेहतर ऑप्शन रहता ठीक है, है। मतलब हम बायलैटरल सेल्फिंजियोफ्रेक्टमी और हिस्टेक्टमी कर दें, या मायरिना का ट्रायल देते हैं, या क्या मतलब इनके लिए बेहतर होता? तो इनको कोई प्रॉब्लम है? एचएमबी थी, क्या क्या थी बेहतर इसको? होता है मैडम? जी मैम। इस जी पेशेंट को मैम कंप्लेंट एचएमबी क्या है? थी इसको। एचएमबी है? एंड ऑन अल्ट्रासाउंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट? जी मैम एचएमबी थी। अच्छा देखो, द जी थिंग मैम ऑन इज कि दो अल्ट्रासाउंड चीजें हैं एवरीथिंग वाज ऑल इसके राइट। अंदर। अब दो चीजें हैं। शी इज 36, यानी अभी काफी टाइम है मेनोपॉज को, बट शी इज हैविंग एचएमबी एंड देयर इज नो अदर कॉज। अगर आप इसकी मेजर सर्जरी की तरफ जाओगे, laparoscopic hysterectomy and BSO, that will be the ultimate treatment for her you can offer. बट अगेन एक मॉर्बिडिटी उसके साथ भी अटैच्ड है, इट्स मेजर सर्जरी। तो आई वुड से कि लेस इंटरवेंशन से ही शुरू करेंगे। जहां तक पीरियड्स का हिसाब है, बेशक कुछ सीपी चाइल्ड है बट 36 तक भी तो मैनेज हो ही रहा है ना। तो एकदम से मेजर सर्जरी और मॉर्बिडिटी के बजाय एट द एज ऑफ 36 आप उसको पहले यू कैन गिव हर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर वो ओरल मेडिसिन कोई इसके साथ नहीं रह रहा जो मेंटेन कराए, देन यू कैन गिव हर ट्रायल ऑफ माइरीना ऑल्सो। और अगर वो सेट हो जाती है तो ठीक है, इफ नॉट तो फिर आप उसकी फिर सर्जरी एडवाइस करोगे। देखो, जो मेजर सर्जरी है वो मेजर सर्जरी है। सो आपने अगर देखो, एक चीज तो होती है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे कि शी इज एबनॉर्मल चाइल्ड एंड वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मैनेजिंग हर पीरियड डेट्स। यानी कि जब इसको पीरियड्स होते हैं, जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चियां होती हैं या सीपी होती है, जिनके घर में अगर पीरियड्स आ जाए मदर बेचारी की जिंदगी ज़ाब हो जाती है, या घर वालों की के बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू मैनेज, तो इट्स बेटर टू रिमूव हर यूट्रस। बट यहाँ पर पेशेंट ने प्रेजेंट उसके साथ नहीं किया, पेशेंट ने प्रेजेंट एचएमबी के साथ किया। ठीक है ना? तो आपने एचएमबी को ही ट्रीट करना है। तो आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी ऑफर करनी है, आपने उसे मरीना भी ऑफर करनी है। हाँ, जहां तक मदर में सीए ब्रेस्ट की की हिस्ट्री है, तो फिर वो तो ईयरली मेमोग्राम और CA 125 और टीवीएस या पेल्विक स्कैन, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज अनमैरिड, तो आप एब्डोमिनल स्कैन, पेल्विक स्कैन जिसे कहते हैं, और ये तीन चीजें तो हम ईयरली वैसे ही करा के स्क्रीनिंग करते रहेंगे। तो फिर एकदम से मेजर सर्जरी पे आने में आप मॉर्बिडिटी बढ़ा रहे हो। But at the same time, if someone brings her to you with a complaint कि she's having HMB and we are facing a lot of problem because मदर की भी डेथ हो गई है, बिकॉज अगर मदर की डेथ भी हो गई तो कई दफा केयर टेकर्स होते हैं, किसी की बहन होती है साथ, किसी का तो बट बात एबनॉर्मल चाइल्ड जब प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको आपके पास लाया किस मसले से गया है। एकदम से सर्जरी इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? इवन सर्जरी इज नॉट इजी इन दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल। वो पेन बता नहीं सकते उनकी, और खुदा ना खास्ता है, सब सर्जन भी इंसान है। जब हम सब प्रोसीजर करते हैं, अल्लाह ना करे लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। तो अगर कोई हो जाए और मॉर्बिडिटी बढ़ जाए तो उस बच्चे की क्या जिंदगी होगी? तो आपने बहुत सोच समझ के आपने उसका मसला ही हल करना है, यानी किस कंप्लेंट के साथ उसने प्रेजेंट किया आपके पास। ठीक है? नीलम ने एक अच्छा सवाल किया हुआ है लेकिन लंबा है। नीलम थैंक यू जरा बोल मैडम। ले आप, क्योंकि थैंक पढ़ा यू नहीं जा मैडम। रहा जी। जी वेलकम जी। मैम ये जो है कैन वी डिस्कस ऑप्शन ऑफ GNR इज एनालॉग इन पेशेंट who is going for the myomectomy who has fertility wishes to decrease the size and uterine size is greater than 28 weeks?
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा जवाब इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरा जवाब नो होगा। उसकी वजह ये है कि साइज तो डिक्रीज कर दिया, जैसे अगर 26 वीक साइज है, चलो 12 वीक्स तक आ गया वो साइज, लेकिन उसमें जब आप सर्जरी करोगे तो वो प्लेन्स ही नहीं मिलेंगे। आप उसकी एक्स्ट्रा मसल टिश्यू यूट्रस का निकाल दोगे। आफ्टर GnRH I have done surgeries, ठीक है, and you cannot demarcate a fibroid. Instead 26 week size में जिसको GnRH नहीं मिला और she wants to conceive later on और उसकी पहले सर्जरी भी नहीं हुई, तो जिसे कहते हैं ना इतना प्यारा फाइब्रॉइड निकलता है, वो जिसे कहते हैं ना एक पप्पू फाइब्रॉइड होता है, इट इज सो सिंपल टू रिमूव, क्योंकि वंस यू आर इनसाइड द राइट प्लेन तो वो पॉप आउट कर जाता है खुद ब खुद ही, ठीक है ना। तो द थिंग इज, वही बात है कि माइमेक्टमी कैन बी वेरी वेरी सिंपल, और माइमेक्टमी कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसीजर इन गायनी। इफ यू आर इन द राइट प्लेन थिंग्स बिकम सो इजी फॉर यू। वो एक्चुअली खुद ब खुद ही नेचर उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। सो द थिंग इज कि अगर आप मेरे से पूछो, पेशेंट हु इज अनमैरिड और हु इज हैविंग सम फर्टिलिटी एंड इज हैविंग द सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स बेटर नॉट टू गिव GnRH एंड रिमूव द फाइब्रॉइड, सो दैट आप उसका मसल टिश्यू ऑफ द यूट्रस भी कंजर्व करो, आप उसकी ओवरऑल चीजों को ठीक रखोगे। इंस्टेड GnRH दे के एक्स्ट्रा मसल टिश्यू और इवन एंडोमेट्रियम कब निकाल रहे हो पता ही नहीं लगना, तो या फिर आधा फाइब्रॉइड अंदर रह जाएगा, क्योंकि जब आप प्लेन में नहीं होगे आपको टिश्यूज की डिमार्केशन ही नहीं होगी कि फाइब्रॉइड किधर है और मायोमा मसल लेयर किधर है यूट्रस की, तो मायोमेट्रियम का है, तो द थिंग इज कि वो फिर आपको सही वो चीजें इनकम्प्लीट सी होंगी आपकी। तो बेहतर तो यही है, अगर सवाल एग्जाम में हो कि कब देना है तो उसका यही जवाब है कि ब्लड लॉस इंट्राऑपरेटिव कम करने के लिए, बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जो जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स या मेडिकल रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो तो है ही, उसके अलावा एक्सपेंसिव भी है, उसके अलावा इंट्राऑपरेटिवली आपको प्लेन्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो भी एक साइड इफेक्ट है जी। ओके डॉक्टर। ठीक है, चलो आई होप काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैम मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। अभी जो आर्टिकल आया है ना कि आपने GnRH देना है कि नहीं, उसने कहा है कि आपने अगर हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करनी है, इफ द साइज इज लार्जर देन यू हैव टू गिव द GnRH, अदरवाइज वेरी मायोमेक्टमी गुड, आर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं बताती हूँ जी क्या है मैम, इसका मतलब। मैंने पढ़ा जी था इसमें लेप्रोस्कोपिक में तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उसमें तो हाँ मिलेगा ही नहीं क्लैव्स। बिल्कुल, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी उस फाइब्रॉइड की जाती है जो यस कि मैम, सब उसमें म्यूकोजल बिल्कुल हो। नहीं देना है। हिस्टेरोस्कोपिक जो कि नीचे वजाइनली करते हैं, वो उसमें करते हैं जिसमें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हो। अगर वो बड़ा सा है, जैसे 4-5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है सब म्यूकोजल, और आप हिस्टेरोस्कोपिकली कर रहे हो, तो कई दफा आपको 2 सिटिंग्स में करना पड़ता है, बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इतना इतना ज्यादा आपका लंबा काम चल पड़ता है। तो उसके अंदर यू कैन गिव GnRH 3 months बिफोर, आप वंस पर मंथ दे दो 3 दफा, और ताकि वो 5 से 3 सेंटीमीटर रह जाए, और वहां पर क्योंकि वो सब म्यूकोजल है तो आपको स्टेरोस्कोपिकली नजर आ रहा होता है कि वो एक ब्रॉड सी बेस नजर आ रही होती है और वो फाइब्रॉइड होता है। उसमें फिर आपने से उस फाइब्रॉइड का प्लेन में नहीं जाना होता, उस पूरे को ही शेव ऑफ करना होता है। तो यस, यू कैन डू दैट, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। सो गुड, सो ओवरऑल एवरीथिंग एवरीवन वाज वेरी गुड, क्वेश्चंस बहुत वैलिड थे, और नाइला और आमना यू वर आल्सो वेरी गुड। दोनों को प्रेजेंस ऑफ माइंड की, नंबर 1, नंबर 2 टाइम को याद रखना, क्लॉक आपकी चल रही होती है एग्जाम में, अपने वर्ड्स को बहुत फोकस्ड रखना है, बट एक्सप्लेनेटरी, और प्रैक्टिकल रहना है एग्जाम में। मैम FCPS इज नेक्स्ट ऑल टाइम अबाउट द प्रैक्टिकल फाइब्राइड थिंग जी। विथ इनफर्टिलिटी करवाइएगा वो हो चुका प्लीज। है, पिछले 1-2 दिन पहले ही तो हुआ है। अच्छा, नहीं मैंने अटेंड नहीं किया। रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देखो, मेरा ख्याल है अब हम और टॉपिक्स की तरफ भी